लोग अवेलेबल हैं, बाकी लोग तो शायद अभी नहीं ज्वाइन किया। जो डिसीजन टेबल है, ये जो डिसीजन टेबल है, इट हैज two major components. One is called the state of nature and the other one is called alternatives. So last time भी हमने when we were doing this decision tree, तो हमने देखा कि there are three alternatives. It can और alternatives के आगे जो है वो options हो सकती हैं. So if this is a decision table, here we have three alternatives given. We can construct a large plant, we can construct a small plant, and we can do nothing. So हमारे पास तीन alternatives हैं, ठीक? So if you remember, हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि अगर हमने डिसीजन ट्री बनाना हो, अगर लेट्स से दिस इज द डिसीजन टेबल एंड इफ आई आस्क यू कि आपने इसका डिसीजन ट्री बनाना है, तो आप हमेशा डिसीजन ट्री में किस नोड से स्टार्ट करते हैं? डिसीजन नोड से. नाउ फ्रॉम द डिसीजन नोड उतनी ब्रांचेस निकलेंगी जितने आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं. सो वी हैव थ्री अल्टरनेटिव्स, सो देयर आर थ्री ब्रांचेस, 1 2 and 3. This is option 1 जो कि है construct a large plant. This is for option 2, that is to construct a small plant, and this is for option 3, which is to do nothing. फिर हमने ये कहा कि every branch terminates with an action node. हर एक के आगे एक एक action node आ गया. And these actions nodes basically represents this state of nature. तो हमारे पास लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो दोनों ऑप्शंस की 0.5 और 0.5 है. तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है? दो. सो वी हैव टू स्टेट ऑफ नेचर्स, फेवरेबल मार्केट एंड अनफेवरेबल मार्केट. सो वेदर इट इज कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट, whether it is to construct a small plant, whether it is to do nothing, in every case we have how many state of natures? 2. तो जितनी स्टेट ऑफ नेचर होंगी, जितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी, उतनी यहाँ से आगे ब्रांचेस निकलेंगी. सो यहाँ पे एवरीवन हैज टू स्टेट्स ऑफ नेचर, तो यहाँ से हर एक से दो ब्रांचेस निकल रही हैं. वन इज फॉर फेवरेबल मार्केट, then one is for unfavorable market, then it is for favorable, it is for unfavorable, then again favorable and unfavorable. So now I have started this. Sorry, I forgot to record it. I just started recording at the moment. I'm repeating it again. That last time we discussed that there is a tool called decision tree and we solved two numericals. आज हम देख रहे हैं कि this is a decision. The alternatives were to construct a large plant, to construct a small plant, and to do nothing. And these are listed over here. यहाँ पे देखें आप, जितने हमारे alternatives हैं उतनी branches निकल रही हैं decision node से. So 3 branches are emerging. One is for construct the large plant, one is to construct the small plant, and then the third one is to do nothing.
So we know the basic rule कि जितनी alternatives होंगे उतनी decision node से branch निकलेगी, and then each of this branch ends with an action node, or it is also called state of nature node B, right? So although वैसे तो if I believe that there would have been another node over here जिसके ऊपर लिखा होता 3 और इसके ऊपर भी यूं करके बनना चाहिए था, बट उसने नहीं बनाया बिकॉज उसके दोनों केसेस में आंसर 0 आ रहा है. बट स्टिल as far as the rule is concerned, every decision node is connected with alternatives. We have connected it with large plant, small plant, and do nothing. And then against each of the state of nature or action node, there are two states of nature, favorable market and unfavorable market. So in construct large plant, there can be two states of nature, favorable market and unfavorable market. When the alternative is to construct a small plant, again we have two states of nature. One is favorable market, the other one is unfavorable market. Finally, if the option is to do nothing, again we have two options. One is for favorable market and one is for unfavorable market. Right? Is this clear so far? Okay. So when we are talking about conversion of a decision table into a decision tree, the data from the decision table is converted into decision tree in the similar format. First, we look at the alternatives. All the alternatives emerge from the decision node. From the decision node, there are three alternatives, so there are three branches. Each branch ends at an action node, which is also known as the state of nature node. From each action node or state of nature node, we get two states of nature, because in the data we have two state of natures. One is the favorable market, the other one is unfavorable market. So इससे हमने एक branch structure इसका build कर लिया. Now we'll now load the data which is given to us. This is the data. So okay, so if we are talking about construction of a large plant and the state of nature is favorable, then what value we are looking at? It is 200,000. If the state of nature is to construct a large plant, but the market is unfavorable, then it is minus 180,000. So इससे हम इसके ऊपर डेटा जो है वो लेबल कर रहे हैं one by one. If we are talking about to construct a small plant and the market is favorable, how much we are expecting to get is 100,000. And if the alternative is construct a small plant and the state of nature is unfavorable, then we expect to get minus 20,000. And in case of do nothing, in all the instances, the value is $0. And now if we talk about the probability, let's say the probability of each case is 0.5. So 0.5, every option state of nature has a chance of 0.5. तो 0.5 आप हर ऑप्शन के नीचे लिख दोगे, हर अल्टरनेटिव के नीचे लिख दो, स्टेट ऑफ नेचर के नीचे मेंशन कर दोगे. So we will get this tree. Now have a look over here. We started with the decision node, this one, and there were three state of natures. There were three alternatives, 1, 2, and 3.
So we have, this is the third state of alternative. In each alternative, we have an action node or state of nature node at the end. So 1, 2, and 3, because it's not doing it because it's obviously $0. So 0 multiplied by anything will result in 0. So that is why it's not completed the action nodes for this one or the state of natures. And these are the values जो हमने इसके ऊपर लेबल की थी. If it is construct the large plant and the market is favorable, payoff is 200,000. Remember the probability for each of this state of nature for all this is 0.5, 100,000 and minus. After labeling this, the next step is to calculate the expected monetary value we discussed in the last lecture. So expected monetary value for this is for node 1 will be, last time remember the formula kya tha? It is the value multiplied by probability. So EMV is value multiplied by probability. So what is the value or payoff? It is 200,000 multiplied by 0.5 plus 0.5 into 180,000. So probability multiplied by value plus probability multiplied by value. And that gives us $10,000. And that we have labeled over here. So for first node, which is to construct the large plant, the EMV is $10,000. Similarly, we calculate the EMV for option number or state number or node number 2. The value for node number 2 can be calculated in the similar manner. Kaise? By multiplying the probability with the value. In this case, it is 0.5 multiplied by 1000 plus minus 20,000 into 0.5, which gives us $40,000. And for this third state of nature, we know, or the third alternative, we know it's $0. Now remember, last time I told you one thing, that if we are calculating the EMV for returns or revenue or profit, then we pick the answer which is the maximum one, because the decision is to maximize our returns and minimize our cost. And obviously, if it is about, the data is about cost or expenses, अगर कॉस्ट या एक्सपेंसेस का डेटा है तो हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें ईएमवी का आंसर जो है दैट इज मिनिमम. सो नाउ लुकिंग एट दिस डेटा, the EMV for node 1 is $10,000, EMV for node 2 is $40,000, and EMV for third do nothing is $0. And because we are dealing in returns or payoffs means returns, so we will be going for the answer which is the maximum one. So our best decision is, in this case, is alternative number 2, which is to construct a small plant. So alternative number 2, construct a small plant and at a cost at the returns of 40,000, EMV of $40,000. So that is our decision. Right, जी? Is this clear? सर जी ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो आपने कहा था कि कॉस्ट में मिनिमम वैल्यू लेनी है और हम यहाँ पर नहीं, ये कॉस्ट नहीं है ना, ये वो प्रॉफिट है. हाँ, ये पे ऑफ्स है, रिटर्न्स है आपके, मतलब कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको जो आपने इन्वेस्ट किया उसके पैसे मिल रहे हैं, रेवेन्यू है आपको. ठीक है. तो इस केस में हमने मैक्सिमम आंसर पिक कर लिया. अगर ये कॉस्ट होता तो फिर मिनिमम लेना था. फॉर द मिनिमम आंसर. ओके 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 ओके, नाउ
Now we discuss what are the types of decision making environments. When we talk about decision making environments, there are three types of decision making environments. One is decision making under uncertainty. Number two is decision making under risk. Number three is decision making under certainty. Uncertainty means what? Uncertainty means that almost none of the information is available to us. No prior information is available to us. And whatever decision we have to take it on our intuition or judgment. So the decision making in under uncertainty kya hai? It is a situation where almost none of the information or very little information is available, maybe 0 to 10%, and we have to take decision based on our intuition. Intuition कहते हैं एक्सपीरियंस को, पास्ट एक्सपीरियंस को, जजमेंट को. सो हमने जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग आर ऑफ थ्री टाइप्स. One is the decision making under uncertainty. That is when we have almost very less information available, and the decision we are taking it on the basis of our intuition. Second type of decision making is decision making under risk. Risk is a situation where some of the information is available and some is not available or missing. So here you assign probability just like in EMV. अभी हमने EMV पढ़ा है, उसमें हमने सिनेरियोस को प्रोबेबिलिटी असाइन की थी कि अगर फेवरेबल मार्केट का है तो 0.5 चांसेस हैं और 50% और अनफेवरेबल के भी 50%. सो जब डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क होती है, यानी कुछ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल and some information is not available, there we take the decision and we take in consideration the probabilities. हम किसको कंसीडर करते हैं? प्रोबेबिलिटी को. Then when we talk about decision making under certainty, certainty means that almost all the information which we require for decision making is available to us. So there we don't need to make use of anything because it is a routine decision. So things are very clear and we take whatever is based in our policy or procedure. जो हमारे policy procedure daily चल रहे हैं, हम उसको use करते हैं and we come up with a decision. So decision making can be of three types. One, decision making under uncertainty, where some information is available and some information is almost none of the information is available or very less information is available. So here we take the decision based on our intuition, our past experience, our judgment, our gut feeling. Second type is decision making under risk. Here some information is available and some information is missing and we assign probability, which probability का definition क्या होता है? Chance and occurrence of an event. मैंने last lecture में भी discuss किया था. So probability is 50 chances क्या है? 40-60 है, 50-50 है, 10-90 है, whatever. So that is decision making under risk. Third type is called decision making under certainty. When you talk about decision making under certainty, it means most of the information which is required to take the decision is available and whatever decision we'll take will be a routine decision. Nothing more required, no personal judgment or experience is required. Now, under these three categories, we have different tools which are available. हमें decision making करने के लिए ये तो होगी types, ये तीनों types हैं. अब इसके आगे हर एक के अंदर हम वी विल डिस्कस टूल्स. कुछ हमने
डिस्कस किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल द डिसीजन टूल, a tool which helps us to take decision under risk situation is called EMB. You have done EMB. EMB is the tool for decision making under risk. आज के लेक्चर में मैं सारी जो चीजें हैं इसको सम अप कर रहा हूं बिफोर वी कैन नाउ मूव इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट BOK. सो हम इसको आज टूल्स को थोड़ा सा वाइंड अप कर रहे हैं. सो हम जाओ कंपनी एडिंग देम अप अंडर देयर हेड्स. सो अगर डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी है तो उसके अपने टूल्स हैं. If the decision making under risk is under risk, then it has its own tool which is called EMB. आपने पहले भी किया है, आज दोबारा रिवाइज करेंगे. And if the decision making is under certainty, तो उसके अपने टूल्स हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे. सर जी इन तीनों टाइपों के न्यूमेरिकल अलग अलग हैं. हाँ, ये अभी मैं करवाने लगा हूँ. ये थोड़ा सा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. We'll go through this. First is the decision making under uncertainty. ये कैटेगरी 1. इसमें 3 टूल्स हैं. One is called Maximax, then it is Maximin, then we have Equally Likely. There are 3 tools which are available to us for decision making under uncertainty. We'll go through the definition later, but just focus on the 3 types. One is called Maximax, and Equally Likely. Before we can proceed further, just don't look at the definition at the moment. Just look at this word Maximax. It has 2 portions, Maxi and Max. This Maximin has two components, Maxi and then Min. ठीक है जी. हमने क्या किया है, काइंडली थोड़ी देर के लिए इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा. इज कॉल्ड मैक्सीमैक्स. इसको हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया. पहला वर्ड मैक्सी अलहदा कर लिया है और मैक्स अलहदा कर लिया है. मैक्सी मिन में पहला वर्ड मैक्सी अलहदा कर लिया और मिन अलहदा कर लिया हमने, राइट. जो पहला कंपोनेंट है वो रो का ऑपरेशन है. दूसरा जो कंपोनेंट है वो कॉलम के ऊपर हमने करना है. वो क्या है मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूं, बट इसको इसी तरीके से नोट कर लें. फर्स्ट पोर्शन मैक्सी इज रो ऑपरेशन, रो पे करेंगे. मैक्स जो है वो कॉलम पे करेंगे. फिर मैक्सी एंड देन कॉलम. काइंडली अनम्यूट कर लें सारे ताकि मुझे आप लोगों का फीडबैक थोड़ा बहुत आता रहे. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको समझना जरूरी है. Then we have, then we third is equally likely. I'll explain it in a minute, but let's first see the data. इस डेटा को देख के घबराना नहीं है काइंडली. पहले ये वही डेटा दिया हुआ है. We have the alternatives. 1 is to construct a large plant, 2 is to construct small plant, 3 is to do nothing. There are 2 state of natures for each of the alternative. It can be favorable market and unfavorable market. Now, if it is Maximax, if we are talking about Maximax, so मैंने कहा कि it has 2 portions, Maxi and Max, right? First is the row operation, then column operation. करना ये है, in Maximax, you have to identify from each row what is the maximum number. First operation is Maxi. Maxi is row operation. So in row, you need to find out which is the maximum. In first row, the maximum is 200,000. Out of 200,000 and minus 180, which is the maximum? 200,000. 200,000. In the second row, out of 100,000 and minus 20,000, कौन सा maximum है? 100,000. Third is 0 and 0. So दोनों में से कौन सा है? 0 ही आ गया. Now we move on to the second portion called max.
मैक्स क्या है? Max is column. Out of this column, you have to select what is the maximum. Maximum in the row, maximum in the column. That is called maxi max. So maximum क्या है? 200,000. अगर आप यूज कर रहे हो टेक्निक called maxi max, if you are using the technique called maxi max, maximum in the row and then maximum in the column, out of the given values you find out that this is the maximum in the column. So if you are using maxi max, then your decision will be what? Your decision is to construct a large plant. Why? Because out of the rows, first we identify the maximum, and out of the column then we select what is the maximum value. That is called maxi max. And 200,000 is the value which is against which alternative? Construct a large plant. So now read it downward. The maxi max choice is to construct a large plant. This is the maximum of the maximum number within each row or alternative. ये maximum है किसका? रो के maximum आंसर जो आए हैं उनमें से maximum ये है. ये क्लियर है हर एक को? Yes, sir. ऑलराइट, सो मैक्सी मैक्स में हमने इसको दो चीजों में डिवाइड कर दिया. मैक्सिमम इन द रो, और सबसे पहले रो में कौन कौन सी वैल्यूज थी? 200,000 माइनस 180. सो मैक्सिमम क्या था? 200,000. सेकेंड रो में 100,000 एंड माइनस 20 में से विच इज द मैक्सिमम? 100,000. थर्ड रो में आउट ऑफ 0 एंड 0 ऑल आर इक्वल, सो 0 आ गया. देन मैक्स जो सेकंड पोर्शन है उसका, उसमें वी नीड टू आइडेंटिफाई के रो में कौन सा मैक्सिमम है. सो हमने वो आइडेंटिफाई करके देखा तो वो 200,000 था, और वो किस अल्टरनेटिव के अगेंस्ट था? दैट वाज अगेंस्ट कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट. तो हमारा डिसीजन क्या है? आवर डिसीजन इज टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट. इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब आ गया है मैक्सी मिन. मैक्सी मिन क्या हो सकता है जी? व्हाट इज द मैक्सी मिन? थोड़ा सा एवरीवन शुड टेक पार्ट नाउ. हाँ, पहले आप मैक्सिमम ढूंढोगे रो में, राइट? और कॉलम में मिनिमम देखेंगे. हाँ जी. नाउ यहाँ पे इसमें आंसर्स इसने लिखे हुए हैं. ये बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज समथिंग एल्स. ये मिनी मैक्स लिखा हुआ है, ठीक है? मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैक्सिमिन है, राइट? ये कुछ और आ रहा है. अगर मैक्सी मैक्स होता तो मैक्सिमिन होता तो आपके पास पहले रो में क्या आता? $200,000. सेकेंड रो में आपके पास आता 100,000. थर्ड रो में आता आपके पास 0, राइट? 0. Yes, sir. तो देन आप उसमें से मैक्सिमम मिनिमम सेलेक्ट करते हैं, तो आपका क्या मिनिमम आंसर आता? 0. 0. So if we are talking about maximin, in maximin we first find out the maximum in each row, and within maximum in each row we find out the minimum, and in this case this is 0. So if we are talking about maximin approach, what alternative we will pick? We will go construct the small plant, or we do nothing? We do nothing. We do nothing. So अगर मैक्सी मैक्स है तो हमारे पास मैक्सिमम आया, वो था कंस्ट्रक्ट द लार्ज प्लांट. इफ वी आर गोइंग फॉर द मैक्सिमम चॉइस, दैट इज टू डू नथिंग. एंड फाइनली द थर्ड मेथड इज कॉल्ड इक्वली लाइकली. काइंडली नोट डाउन, इक्वली लाइकली मींस एवरेज. इक्वली लाइकली क्या है? एवरेज है. सर ये सेकंड वाला में दोबारा रिपीट कीजिएगा. मैक्सिमम वाले में ये डेटा इस पे गलत लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा. ठीक है. मैक्सिमिन में फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द मैक्सिमम इन ईच रो, जस्ट लाइक दिस वन. ठीक है. एंड आउट ऑफ दिस देन यू सेलेक्ट द मिनिमम. तो मिनिमम क्या है? 0. और 0 इज अगेंस्ट डू नथिंग.
So if we are talking about maxi-min, in this case, the best alternative will be to do nothing. The third method is called equally likely. Equally likely is the another name for average. Average क्या होती है? अगर दो नंबर गिवन है आपको, तो एवरेज क्या होगा? उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना. एवरेज मींस सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. सो यहां पे आप किस किस को प्लस करोगे? पहली रो में 200,000 प्लस ब्रैकेट में माइनस 180 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10,000. इज दिस क्लियर? Yes. यस सर. पहली रो का एवरेज क्या निकलेगा? 200,000 प्लस माइनस 180, तो इससे बचा 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 10,000. ये एवरेज करके दिखाऊं दोबारा, या आप कर लोगे? मैं इसको दोबारा दिखाता हूं व्हाइट बोर्ड पे. कर लेंगे सर, कर ओके, लेंगे. नाउ सेकंड वन इज 100,000 प्लस राणे एसपीएन ਦਾ ਕੀ ਨਾ हेलो, एसपीएन ਦਾ ਕੀ ਨਾ काइंडली म्यूट करें, मुझे बीच में आवाजें बड़ी आ रही हैं यार. कोई एक आध बंदा बस ऑन रखे जिसके कान डिस्पर ज्यादा इंटर नहीं आ रही आवाज. ओके, सेकंड एवरेज इज 100,000 प्लस माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 2. प्लस माइनस 20,000 इज 80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 40,000. थर्ड की एवरेज क्या निकलेगी? 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0. So once you have, first you need to calculate the row average. I am talking about equally likely. जब एवरेज के आंसर आ जाएंगे तो फिर आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि मैक्सिमम आंसर किसका है. और इसमें मैक्सिमम आंसर है 40,000, जो कि किसके अगेंस्ट आ रहा है? कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट. सो द इक्वली लाइकली चॉइस इज टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट. सो अब मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने कौन सी 3 टेक्निक्स की हैं जी? मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन एंड इक्वली लाइकली. मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन एंड इक्वली लाइकली. ठीक है? यस सर. इसमें ये हो रहा है कि 3 हमारे पास हैं, कंस्ट्रक्शन, लार्ज प्लांट, स्मॉल प्लांट. अब इनमें से हमने ये डिसीजन करना है कि हमने कौन सा प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है. इसमें हम यही कर रहे हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई की है डिसीजन करने के लिए. यस सर. देखिए हमारे पास अब था कि कंस्ट्रक्ट लार्ज प्लांट और कंस्ट्रक्ट स्मॉल प्लांट, और एक में था डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना. तो इसमें हमने ये टेक्निक अप्लाई करके चेक किया कि हमने कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो करना है. यही हम कर रहे हैं. और टेक्निक आप मेंशन करते हैं प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट में कि मैंने जो है मैक्सी मैक्स यूज किया है, मैंने मैक्सी मिन यूज किया है, या इक्वली लाइकली यूज किया है. यस सर. इस टेक्निक से हमें ये पता चला कि कौन सा जो प्रोजेक्ट करना है वो इसमें कौन सा करना है हमने प्रोजेक्ट, इसमें जिसमें फायदा होगा. ये टेक्निक हमें ये बता रही है. प्रोजेक्ट को डील कर रहे होते हो तो रिस्क क्यों है? क्योंकि चीजें, ये अनसर्टेनिटी की एनवायरनमेंट है. यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो कंप्लीट और अवेलेबल नहीं है. लिहाजा आपने एक ऐसी टेक्निक एक्सेप्ट की है कि जो किसी हद तक फॉर्मल टेक्निक है. आप प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट में लिख देंगे दैट मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि चीजें जो थी वो अनसर्टेन थी. तो मैंने डिसीजन करने के लिए आई हैव यूज्ड आइदर मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन और इक्वली लाइकली. अब वो डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा, और आगे आप जितने भी डिसीजन करेंगे, जब तक आपका कोई और मेथड आप फाइनल नहीं करते, तो आप उस टेक्निक को ही लेके चलते रहोगे आगे पूरे प्रोजेक्ट में. सर एक क्वेश्चन है कि हम इन तीनों में से हम कौन सी चूज करेंगे, ये किस तरह पता चलेगा? डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर होता है. जी. अच्छा, मैं अब एक एक्सरसाइज दिखा रहा हूं. मैं बिफोर हम वापस आएंगे, मैं एक इसमें स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं. इसी को दोबारा जा रहे हैं हम, इसी पे.
अच्छा जी, ये डेटा दिया हुआ सबके सामने है, राइट? यस सर, सबको डेटा नजर आ रहा है जी ये? यस सर, यस सर। ओके, सो नाउ अगर हमने पहली जो टेक्निक अप्लाई करनी है वो है मैक्सी मैक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैक्सी मैक्स में आपको सबसे पहले हर रो में से मैक्सिमम ढूंढना है। तो आपका पहली रो का मैक्सिमम क्या है? 350। सेकेंड रो जी, हम मैक्सी मैक्स के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली रो में क्या आएगा? 350 मैक्सिमम है। सेकेंड रो में मैक्सिमम क्या है? 180। थर्ड रो में कौन सा मैक्सिमम है? 110। और फोर्थ में क्या मैक्सिमम है? 0। और अब अगर आपने मैक्सी मैक्स लगाना है तो अब आपने सेकंड स्टेप में इसमें से कौन सा नंबर ढूंढना है जो कि क्या है? इन चारों में से आप कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे मैक्सी मैक्स में? मैक्सिमम और मैक्सिमम कौन सा नंबर है? 350। तो आप अगर मैक्सी मैक्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिसीजन क्या होगा? द डिसीजन इज टू बिल्ड अ न्यू प्लांट। ठीक हो गया जी यहां तक? अब अगर सेकंड टेक्निक है वो है मैक्सी मिन। अब अगर सेकंड टेक्निक जो है वो मैक्सी मिन है, similarly first you will identify what is the maximum in each row. So almost you will get the same answers. 350,000 in the first row is maximum. 100,000, 180 is the maximum in the second row. 110,000 is the maximum in the third row, and 0 is maximum in the fourth row. अब आपने सेकंड स्टेप में किसको पिक करना है? मिनिमम को। और मिनिमम इसमें क्या है? 0। तो अगर आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमिन तो आपका डिसीजन क्या होगा? द डिसीजन विल बी टू डू नथिंग। सर डू नथिंग मतलब कुछ भी नहीं करना? हाँ, यानी स्टेटस को, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करना, अभी जैसे चल रहा है वैसे ही लेके चलते रहना है। अच्छा ठीक। थर्ड मेथड हमने किया इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली क्या होता है? रो का एवरेज। एवरेज इसमें पहली रो की आप कैसे लोगे? सर पहली रो में जो दो तीनों वैल्यूज होंगी इनको सम अप करके तीनों डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली। सो द करके मुझे आंसर बताइए। 350,000 प्लस 240,000 माइनस 300,000 डिवाइड बाय 3। टू 290 आ गया। 290 को 3 से डिवाइड कर दें। 6,666 राइट। सेकेंड रो का निकालें। 180 प्लस 90 माइनस 20। पहले का क्या आया था? ठीक है। सो 96,666 was for the first row. For the second row, $180 plus 90 minus 20 divided by 3. क्या आंसर आता है? 83,333. For the third row, 110 plus 60 minus 10.
तो ये ऑलमोस्ट बन गया 160 डिवाइडेड बाय 3. 160 divided by 3 is how much? 53,000. $53,333. And lastly, we know that for do nothing, the answer will be 0. So now, once we have the row averages, we have to pick which one, which is the maximum one, right? So इस Yes, केस sir. में maximum किसका आंसर किसके अगेंस्ट आ रहा है? Build a new plant के अगेंस्ट. So जब हमने यूज किया मैक्सीमैक्स, तो ऑप्शन आई अल्टरनेटिव 1, which is build a new plant. When we use maximin, then the option came was to do nothing. और जब हमने यूज किया इक्वली लाइकली मेथड, तो इसमें भी आंसर वही आया, दैट द बेस्ट ऑप्शन और अल्टरनेटिव इज टू बिल्ड न्यू प्लांट. सर वैसे इन तीनों मेथड में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे डू नथिंग या फिर वो मैक्सिमम. नहीं, वो डिपेंड करता है डेटा की वैल्यूज के ऊपर ना. अगर वैल्यूज सब कॉन्ट्रैक्ट की और ओवर टाइम की ज्यादा होती तो शायद उनके आंसर्स आ जाते हैं. वो बाय चांस वो सिनेरियो ऐसे बन गया, वरना तो लाइकली वो तो डेटा पे डिपेंड करता है. यस, ओके. Now we'll go back. ये हमने कर लिया जी. So now we know that there are 3 tools for decision making under uncertainty. One is called Maximax, one is called Maximin, and one is called equally likely. ठीक हो गया जी? यस सर. ओके. सर फील्ड में हमने इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन यूज करनी होती है हाँ, अगर field हमारे में पास अनसर्टेनिटी वाला डाटा हो. और आपको अपना जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोजिटरी भी कहते हैं, उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें आप टेक्निक मेंशन करेंगे कि मैंने कौन सी टेक्निक यूज की है. ओके. अच्छा, अब आगे आ जाएं. हाँ जी, जो भी टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं, वो शुरू में जब तक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी, तो आप इनमें से कोई एक टेक्निक, इसके अलावा भी हैं, मिनी मैक्स भी है और 1-2 और भी हैं, बट आपके हद तक मैंने 3 ही आज एक्सप्लेन किए. सेकंड इज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, और हमने इसके लिए ये टूल डिस्कस किया हुआ है, EMV, which stands for expected monetary value. The expected payout value of a variable that has different possible state of natures. हर एक स्टेट एक अल्टरनेटिव होते हैं. अल्टरनेटिव्स के आगे आपके पास स्टेट्स ऑफ नेचर होती हैं, और हर स्टेट ऑफ नेचर की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी गिवन होती है. सो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में क्या 3 चीजें हो जाएंगी? वी हैव state of natures, we have alternatives, we have state of natures, and against each state of nature probabilities. So जब आपके पास ऐसा environment हो जहां पे कुछ information available है and some information is not available, then you can assign the probability regarding chance of occurrence of a nature or chance of occurrence of state of nature. और उसके लिए हम टूल कौन सा यूज करते हैं? EMV. और EMV हमने ऑलरेडी आज भी किया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पॉसिबल वैल्यू और रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी. और अगर EMV जो है वो हमारी है रिटर्न या प्रॉफिट, तो हम सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम आंसर. और अगर हमारे पास EMV जो है जिस चीज की हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कॉस्ट है या एक्सपेंस है, तो हम पिक करेंगे कौन सा आंसर, विच इज मिनिमम. ये ऑलरेडी हमने डिसीजन ट्रीज में भी किया और डिसीजन टेबल में भी किया. अब ये आपके पास डेटा था, यही जो अभी हमने किया है, ये आपके पास सारा दिया हुआ है. सो आप अब खुद से EMV कैलकुलेट कर सकते हो.
फर्स्ट रो का EMV कैसे निकला है वो ये दिया। फोन नंबर भी गलत होना, पेशेंट कार्ड नंबर भी गलत होना है, एक नहीं डब्बा आप किसी को रिपोर्ट की थी नगाराबाद से मैं जा। So when we talk about constructing a large plant और इसका EMV हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑलरेडी हमने देखा है वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। सो 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 180,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो इसका आंसर आ गया 40,000। सेकंड का हमने कैलकुलेट किया है EMV ओवर हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ 100,000 प्लस probability of the second multiplied by value of the second. So it is 100.5 into 100,000 plus 0.5 into minus 20,000. So the value is 40,000. Finally, the third row is for do nothing. So 0 into 0.5 plus 0 into 0.5 is 0. And because we are talking about payoffs or returns, हमारे returns का data ये तो या पे ऑफ्स का डेटा है, तो हमें कौन सा आंसर पिक करना है जो कि मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कौन सा आंसर आ रहा है 40,000, और ये किस अल्टरनेटिव के अगेंस्ट आ रहा है? कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट EMV, in EMV this tool is where we multiply the probability with the value. So we have calculated the EMVs यहाँ पे जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। I hope this is clear to each and everyone. और फिर हमने इसमें से मैक्सिमम देखा। क्यों मैक्सिमम देखा? बिकॉज ये हमारे रिटर्न्स या पे ऑफ्स या प्रॉफिट का डेटा था, और इस जब ऐसा डेटा हो तो वी गो फॉर द आंसर विच इज द मैक्सिमम वन, और इस केस में मैक्सिमम कौन है? 40,000, एंड दैट रिलेट्स टू द ऑप्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट। सो हमारा डिसीजन है according to EMV, our decision is to construct a small plant. सर उस रेकमेंड ना मुझे बताइएगा फेवरेबल मार्केट और अनफेवरेबल मार्केट क्या है? ये बेसिकली दो स्टेट ऑफ नेचर्स हैं। जो डेटा में दिया हुआ है उसने कहा है कि जी 50% चांसेस हैं कि हर एक में कि हर अल्टरनेटिव में कि मार्केट फेवरेबल हो। फेवरेबल का मतलब है अगर हम जो प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है, मार्केट हमारे लिए फेवरेबल है। तो और अगर ऐसा हो कि मार्केट अनफेवरेबल हो जाए, जो प्रोडक्ट या सर्विस हम मार्केट में बेच रहे हैं वो नहीं बिक रही, तो फिर अनफेवरेबल मार्केट होगी, तो उसमें हमारे जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में जाएंगे, बल्कि हमें नुकसान होगा। सो उसने दो सिनेरियोस क्रिएट किए हमें कि हर अल्टरनेटिव में दो ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर फेवरेबल मार्केट हो तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर अनफेवरेबल मार्केट होगी तो कितने पैसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू। अब आ जाते हैं थर्ड टूल पे। नाउ द थर्ड टूल इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी क्या है? इफ अ मैनेजर वर एबल टू डिटरमिन विच स्टेट ऑफ नेचर वुड अकर, अगर मैनेजर को ये पता चल जाए कि कौन सा स्टेट ऑफ नेचर होगा, मार्केट फेवरेबल होगी या मार्केट अनफेवरेबल होगी, देन ही और शी वुड नो विच डिसीजन टू मेक। उसको एग्जैक्टली फिर पता चल जाएगा कि उसने कौन सा डिसीजन करना है, बिल्ड अ लार्ज प्लांट करना है, बिल्ड अ स्मॉल प्लांट करना है, या डू नथिंग करनी है। वंस अ मैनेजर नोज विच डिसीजन टू मेक, द पे ऑफ इंक्रीजेस। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले तो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो उसने अंडर रिस्क कैलकुलेट किया। उसने कहा यार या मुझे 40,000 मिलेंगे या 10,000 मिलेंगे या मुझे 0 मिलेगा। यहाँ पे उसको चीजें अनसर्टन थी, उसको 50-50 का प्रोबेबिलिटी था, उसको कंफर्म कोई नहीं था। अगर कंफर्म होता तो किसी एक की 1 होती, दूसरे की 0 होती। लिहाजा अगर उसको ये पता चल जाए कि मार्केट आगे चल के फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल होगी, तो फिर वो दो प्रोबेबिलिटीज ना लेता, वो सिर्फ एक ऑप्शन लेगा कि मैं फेवरेबल रखूं या अनफेवरेबल रखूं। बिकॉज द पे ऑफ विल इंक्रीज
with the knowledge of each state of nature will occur, this knowledge has a value. अब जब उसको ये पता चल जाए अगर कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो वो आज से ही अच्छा प्लान कर लेगा. हो सकता है वो 40,000 जो उसको अभी मिल रहा है वो आगे चल के 100,000 उसको मिल जाए. तो उसकी इस वैल्यू है, इस डिसीजन, इस इंफॉर्मेशन की एक वैल्यू है. वो इंफॉर्मेशन अभी क्या है, वो कौन सी मिसिंग इंफॉर्मेशन है? द मिसिंग इंफॉर्मेशन इज whether the market will be favorable or unfavorable in future. अब अगर उसको ये आज ही पता चल जाए तो वो आज से ही अच्छा डिसीजन प्लान कर लेगा और उसके जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ जाएंगे. जारी बात है वो आज से प्लानिंग करेगा कि फेवरेबल है तो वो और ज्यादा कमाएगा. अगर उसको आज से पता चल जाए कि जी मार्केट जो है वो अनफेवरेबल रहेगी तो आज से ही अपना जो लॉस है वो बचा लेगा. लिहाजा इस इंफॉर्मेशन की वर्थ है, ये इंफॉर्मेशन जो उसको ये बताएगी कि फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, इसकी एक वैल्यू है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है. उस वैल्यू को अब हम जो है वो गेज करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी, अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, अभी तो हमें 50-50 है ना इंफॉर्मेशन, 50 फेवरेबल के या 50 उसकी है, लेकिन अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमारी उसकी वैल्यू क्या होगी उस इंफॉर्मेशन की. इस चीज को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, EVPI, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. अच्छा, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है. ये देखें जरा, ये आपके पास डेटा गिवन है जो अभी हमने पहले भी देखा है. ये हमारे अल्टरनेटिव्स हैं. मैंने इसको A1, A2, A3 कर दिया. अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3. ये प्रोबेबिलिटीज ही हुई है, यही वो फेवरेबल मार्केट और अनफेवरेबल मार्केट का है. अब जरा गौर से देखें, पहले सिर्फ इस टेबल को देखें ऊपर. कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट में सबसे अच्छी सिनेरियो कौन सी है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल. फेवरेबल. ये वाली वैल्यू मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है. दूसरे के अंदर सबसे अच्छी ऑप्शन कौन सी है, 100,000 या -20,000? 100,000. तीसरे में सबसे अच्छी कौन सी है, 0. ठीक. अब हमने एक फॉर्मूला लगाना है, ये थोड़ा सा फर्क है. इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर अनसर्टेनिटी. क्या कहता है ये? एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी, EVUC, एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी है. ये EMV जैसा फॉर्मूला, लेकिन इसमें करना क्या है हमने, ये जो अभी आपने सबसे अच्छी वैल्यूज ढूंढी हैं इनको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके तो टोटल कर लेना है. सो 200,000, ये देखें ना, द बेस्ट आउटकम फॉर स्टेट ऑफ नेचर फॉर फेवरेबल मार्केट इज टू बिल्ड लार्ज प्लांट. द बेस्ट आउटकम ऑफ स्टेट ऑफ नेचर फॉर अनफेवरेबल मार्केट इज टू डू नथिंग. अब यहां पे देखें, इनमें से तो ये तीन में से तीनों मैक्सिमम आ रहे हैं ना. ये जो फेवरेबल मार्केट है, अगर सिर्फ इसको देखें आप, इन तीन में से सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी है, इसको टिक कर ले. सेकंड ग्रुप जो है अनफेवरेबल का, इसमें सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी है? सर 0. तो दो वैल्यूज आपके पास, अगर तीसरा कॉलम होता तो उसमें से भी एक देख लेते. इसमें से जो आपके पास जो पहली वैल्यू आई है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी से, और जो इसमें से बेहतर आई है उसको इसकी प्रोबेबिलिटी से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये देखिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. 200,000 पहले कॉलम में से अच्छा है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया, और 0 सेकंड कॉलम में से अच्छा है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 100,000. ये क्लियर है? यस सर.
EVUC एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी, इसमें आपने दोनों स्टेट ऑफ नेचर्स को अलग-अलग देखना है, दोनों कॉलम्स को अलग-अलग देखना है। इसमें से पहले में से आपके पास A1 अल्टरनेटिव की वैल्यू अच्छी है, दूसरे कॉलम में A3 की अच्छी है। इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके तो टोटल कर लेना है। सो 200,000 जो कि पहले कॉलम में सबसे अच्छी वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 0 इंटू 0.5, तो आपके पास क्या आ गया 100,000। ये क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी, EVUC। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे आ जाए। दूसरे स्टेप पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू, अभी ये जो आपने कैलकुलेट की है एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर अनसर्टेनिटी, ये जो 100,000 आंसर आया है, और यहां पे क्या है? मैक्सिमम EMV। EMV आपने क्या निकाली है अभी पीछे? सबसे अच्छी EMV कौन सी थी इसमें से? हाँ 40,000। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, EVPI इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी, जो कि अभी हमने निकाली है इस स्टेप में 100,000, ये माइनस जो सबसे अच्छी EMV निकली 40,000, ये ऊपर आ रहा है, ये देखिए हमने EMV कैलकुलेट की थी, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो ये आपका आ गया वैल्यू जो कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है जी? हमने दो स्टेप्स किए हैं। पहला स्टेप हमने किया एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की? डेटा में जो हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर्स हैं, हर कॉलम में से एक अच्छी वैल्यू जो है वो पिक कर ली, पहले में से A1, दूसरे में से A3, इनको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो हमारे पास 100,000 आ गया, जो कि आंसर है एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी का। इसमें से जो हमारी मैक्सिमम EMV आई है, जो हमने पिछला स्टेप किया था EMV का, उसमें से उसको माइनस कर दिया। EMV को किस में से माइनस किया? एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी में से, तो हमारे पास आंसर आ गया 60,000। इन अदर वर्ड्स, the Gates company should be willing to pay for the perfect information is 60,000। यानी वो कहाँ कितना खर्चा कर सकती है रिसर्च करने पे कि उसको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल जाए? $60,000 तक अगर वो मैक्सिमम खर्चा कर सकता है। किस चीज का खर्चा? कि उसको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए, क्योंकि अगर उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो पहले कितने थे? 40,000। अब वो बढ़ के कितने हो सकते हैं अगर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए? 100,000। पहले जब अंडर रिस्क था तो कितना रिटर्न आ रहे थे? 40,000। अब जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हमारे पास कितने रिटर्न्स आएंगे? 100,000। तो हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं? $60,000। दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये क्लियर है सबको यहां तक? अच्छा सर जी, न्यूमेरिकल में ना, जो न्यूमेरिकल में फेवरेबल कंडीशन है, अगर वहां पर सर जी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो सेम फार्मूला लगेंगे? ये फॉर्मूले सारे सेम ही हैं जी जी। इसमें मैक्सिमम ही लेना है। देखें, ये उस केस में है जब आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ये लॉस के केसेस में नहीं आएगा डेटा। ये सर जी अगर कॉस्ट होगी तो मिनिमम लेंगे वैल्यू? कॉस्ट होती है तो हम नॉर्मली मिनिमम लेते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है ये आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए होती है। लिहाजा इसमें जब भी डेटा आप लेंगे वो रिटर्न्स का डेटा ही आपको गिवन होगा, लिहाजा आपने मैक्सिमम ही लेना है उसमें। ठीक हो गया सर। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। अच्छा ये देखें, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक, आपको इसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है।
ये है 0.3, ये है 0.5 और ये है 0.2, ठीक है। सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट EMV और फिर हम कैलकुलेट करेंगे EVPI। ऑलराइट, हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा जी, अच्छा इसकी EMV कैलकुलेट करें जरा। पहले स्टेप में पहले कैसे करेंगे आती है आपको? अच्छा ये ड्रॉप होगा, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। हम इस वक्त हो रहे हैं मेरे पास 125, तो हम 155 पे दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओके, सो 2 PM 2 PM हम इस सवाल को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे जी। ओके जी, जी सर। अच्छा ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? जी सर। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और इस क्वेश्चन का हम सबसे पहले जो है हमने अगर EVPI आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो पहले स्टेज में आप कैलकुलेट करेंगे EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के लिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है, मैं इसको A1 कह देता हूं, ये अल्टरनेटिव 1 है, ये A2 है अल्टरनेटिव 2 और ये हमारे पास दिया हुआ है अल्टरनेटिव 3। तो EMV जी, अगर ये EMV हमने कैलकुलेट करनी है A1 की, तो दैट विल बी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो पहले का आएगा 20,000 इंटू 0.3 और या प्रोबेबिलिटी पहले लिख लें जो भी 0.5 इंटू 10,000 प्लस 0.2 इंटू माइनस 20,000। सो ये मैं लिख रहा हूँ 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 प्लस 0.5 multiplied by 10,000 plus 0.2 multiplied by minus 2,000। तो इसका देखना है क्या आंसर आता है। फिर A2 का देख लें, A2 का आएगा 0.3 इंटू 15,000, 0.5 इंटू 12,000 एंड 0.2 इंटू 6,000। सो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं 0.3 इंटू 15,000 प्लस 0.5 into 12,000 अच्छा क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं, आप फिर पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, दोनों चीजें नजर आ जाएंगी ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन भी और स्क्रीन भी? जी सर। ओके ओके, सो 0.3 इंटू 15,000 प्लस 0.5 इंटू 12,000 प्लस 0.2 इंटू 6,000। इसका हमने आंसर देख लेना क्या आता है और फिर आ गया हमारे पास A3 में 0.3 multiplied by 9,000 plus 0.5 multiplied by 6,000 plus 0.2 multiplied by 5,000।
अब क्लियर हुआ कुछ विजन? और सर एक बार रिपीट कर दें। हमने सबसे पहले जो है ईएमवी कैलकुलेट करनी है, और ईएमवी कैलकुलेट करने के लिए हमें, हमारे पास तीन अल्टरनेटिव्स हैं। लार्ज इन्वेंट्री को मैंने A1 लेबल कर दिया है, एवरेज इन्वेंट्री A2 कह दिया है, और स्मॉल इन्वेंट्री को मैंने A3 कहा हुआ है। जब आप ईएमवी कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो जब हम लार्ज इन्वेंट्री के लिए कर रहे थे विच इज A1, तो probability of 0.3 multiplied by 20,000 plus 0.5 multiplied by 10,000 plus 0.2 multiplied by minus 2,000, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ इसका आंसर हम लिखेंगे। A2 की EMV कैसे निकलेगी? 15,000 plus 0.5 multiplied by 12,000 plus 0.2 multiplied by 6,000, ठीक। और तीसरे में 0.3 into 9,000, 0.5 into 6,000 and 0.2 into 5,000। तो हमने इसकी जी ओके ठीक है जी। तो अब इसकी जरा आंसर्स कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे बताएं कि क्या आंसर्स आते हैं। सो हमने पहले स्टेप्स में कैलकुलेट कर लिया ईएमवी, और ईएमवी के हमारे पास तीनों आंसर आ गए। अब हमें याद है कि हमने जो आंसर आगे लेके जाना है वो आंसर है जो कि मैक्सिमम होना चाहिए। सो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम किसका आ रहा है? A1 का, ठीक है। सो हम ईएमवी का आंसर यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर। पहले स्टेप में ईएमवी हमने जो पिक किया है वो है 10,600। ये क्लियर है यहाँ तक जी? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं EVUC, एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी। ये मैं मिटा रहा हूं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ये स्टेप करना है EVUC, और इसमें हमने सबसे पहले हर जो हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर है इसमें मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। सो अगर लार्ज का कॉलम देखें हम, तो इस कॉलम में तीन नंबर्स हैं, 20, 15 और 9,000। सो मैक्सिमम कौन सा है? 20,000, ठीक। सेकंड कॉलम में तीन नंबर्स हैं, 10, 12 और 6,000। सो मैक्सिमम कौन सा है? 12,000।
तीसरे स्टेप में -2000, 6000 और 5000, तो मैक्सिमम कौन सा है? 6000। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब आपने EVUC में उसी तरीके से करना है जैसे वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसमें आपने 20,000 जो वैल्यू पिक की है इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से, इस कॉलम की वैल्यू को इस कॉलम की प्रोबेबिलिटी से, और थर्ड कॉलम की वैल्यू को थर्ड कॉलम की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके तो ऐड करना है। सो 20,000 प्लस इंटू 0.3 प्लस 12,000 इंटू 0.5, ये प्रोबेबिलिटीज इनकी दी हुई है, प्लस 6,000 इंटू 0.2। सो ये हम लिख रहे हैं, दिस इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। ये हमारे पास कॉलम लार्ज का आ रहा है। फिर सेकंड कॉलम में 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, ये हमारे पास सेकंड कॉलम का आंसर आ रहा है जिसका नाम है A, विच इज फॉर एवरेज। और थर्ड में हमारे पास आ रहा है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, ये हमारे पास आ गया स्मॉल का। सो अब हमने इसको ऐड कर लेना है और देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। ये मेरे ख्याल में 6,000 प्लस 6,000 प्लस 0.2 is 1,200. I think it is कितना? 13,200। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। स्टेप नंबर 2 भी क्लियर है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी में आपने सबसे पहले हर स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो वैल्यूज दी हुई हैं इनमें से मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि पहले कॉलम में 20,000, दूसरे कॉलम में 12,000 और थर्ड कॉलम में 6,000 है। फिर हमने EVUC का फॉर्मूला लगाया, सिमिलरली उसी तरीके से है जैसे हमने पहले ऑलमोस्ट EMV का लगाया था। प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है उस सिलेक्टेड वैल्यू से जो उस कॉलम में हमने हाईलाइट किया है। सो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, तो हमारे पास आ गया 13,200। अब लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है कि EVPI एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन बराबर होता है किसके? EVUC माइनस EMV के, मैक्सिमम EMV। ये फॉर्मूला हमने अभी और थोड़ी देर पहले किया है। सो EVUC का हमारे पास आंसर आ गया 13,200 और मैक्सिमम EMV हमारी कितनी निकली थी? 10,600। तो परफेक्ट वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या निकल आएगा? 13,200 में से 10,600 माइनस कर दें 2,600, तो हमारे पास EVPI का आंसर आ गया 2,600। अगर हम $2,600 तक खर्च करें मैक्सिमम, तो हमारे पास जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। और यही हमारा जो है वो कैलकुलेशन था कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज $2,600। सर ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस पर्पस के लिए आई है? कि अगर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास हमें अगर मैं इसको आप इस तरह समझाता हूं। देखें, आपने जब अंडर रिस्क कैलकुलेशन की, तो अगर आपके पास अंडर रिस्क हो यानी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और कुछ मिसिंग है, तो आप कितना अर्न कर सकते हो? मैक्सिमम $10,600। ठीक है, ठीक सर। और अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए यानी सर्टेनिटी का सिनेरियो आ जाए जहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कितनी, फिर आपको कितना रिटर्न मिलेगा? $13,200। यस सर। तो आप अभी रिस्क की वजह से कितना जाया कर रहे हैं, रिस्क की वजह से आप कितना हासिल नहीं कर पा रहे,
वो है $2,600। ठीक तो सर। अगर आपका ये रिस्क खत्म हो जाए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप कितना हासिल कर लोगे? 13,000। अभी कितना ले रहे हो? 10,000। मैक्सिमम गैप कितना है? 2,600 का। इसमें से कुछ आप अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे भी लगा लो, तो उसके बाद आपके रिटर्न्स जो हैं वो फिर भी बढ़ जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है, जो मिसिंग है, उसकी वर्थ कितनी है, कितना मिसिंग है? वो है $2,600। ठीक सर। ठीक है। अब मैं आपके साथ एक इसका पार्ट बी, अब हम थोड़ा सा आज हमारे ये टूल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। अब हम थोड़ा सा एक और चीज की तरफ मूव कर रहे हैं, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं उससे। अब हम नेक्स्ट से ऑनवर्ड जो है, हम इन नई चीजों की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारा ऑनवर्ड। अब यहाँ से हम टूल्स से हटके तो अब जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जो आज से शुरू कर रहे हैं हम। ओके जी, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू रिस्क एंड मैनेजमेंट। ठीक, आज हम टॉपिक करेंगे कि रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज रिस्क? रिस्क can be defined as an uncertain event. Risk is what? It is an uncertain event or condition that if occurs can have either a positive or a negative effect on the project objectives. देखिए, first you need to understand one thing कि रिस्क जो हमने अभी पढ़ा था, रिस्क कौन सी कंडीशन होती है? जब क्या चीज हो आपके पास, यू आर रिस्क है जब आपके पास 100% श्योरिटी नहीं है, सो चांस है। सो अगर रिस्क में कोई इवेंट हो और रिस्क में आप अनसर्टन होते हैं, आपको चीजें क्लियर नहीं होती, तो वो ये कह रहा है कि रिस्क जो है इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। एक चीज आज से आपने एस्टेब्लिश कर लेनी है अपने जहन में कि रिस्क जो है वो सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, रिस्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव दोनों होता है। मैं आपको उसके एग्जांपल ये देता हूं। देखिए, हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि हमने कहा कि जी हमारे पास जो पैसे हैं हमने उसको इन्वेस्ट किया है 10% पे। हमने अपनी इस साल की जो फोरकास्टिंग थी वो की कि हमें जो रिटर्न्स हैं वो आएंगे 10%। अब दो सिनेरियो हैं, 10% से कम आ जाए और अगर कम आ गया तो हमने कहा कि हमारे पास जो रिटर्न आ सकते हैं वो 5% आ सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने ये कहा कि मैक्सिमम हमारे पास कितने रिटर्न्स आ सकते हैं, लेट्स से 12% आ गए। दो मार्केट के सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि हमने 10% की एक्सपेक्टेशन थी कि हमें रिटर्न आएगा, और एक सिनेरियो ये है कि हमें 5% आ जाता है, एक सिनेरियो ये है कि हमें 12% आ जाता है रिटर्न। वैसे अगर आपको मार्केट में आपने अंदाजा लगाया आपको 12% आ जाता है, तो आपको कितना ज्यादा आया है? +2। कितने परसेंट ज्यादा मिला है? 2%। और अगर आपने 10% एस्टिमेट किया था लेकिन आपको 5% मिलता है, तो आपको कितना कम मिला है? -5%। अगर ट्रेडिशनली पूछा जाए किसी से कि यार इसमें रिस्क वाली सिचुएशन कौन सी है, तो लोग नॉर्मली आंसर करते हैं माइनस वाला फिगर। लेकिन असल में ये दोनों जो आंसर्स हैं ये दोनों रिस्क हैं। रिस्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कैसे? क्योंकि अगर आपको पता होता कि आपने 12% मिलना है, तो आप इस 2% के ऊपर भी प्लान कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। सो दिस 2% इज ऑल्सो रिस्क।
और ये जो नहीं मिला ये माइनस में है, ये भी रिस्क है. सो द रिस्क कैन बी पॉजिटिव और कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. रिस्क इटसेल्फ जो है कभी भी याद रखें दैट रिस्क इज नाइदर is positive, it is also negative. It can be positive or it can be negative. अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने 10% प्लान किया होता और 10% ही रिटर्न आ जाते तो आपका रिस्क क्या होता? सर 0. 0. और लिहाजा आपकी प्लानिंग, तो यहां तो रिस्क 0 है अगर आपका वही आंसर आता. अगर आपका रिस्क आपके एस्टिमेट से, अगर आपकी जो रिटर्न्स हैं वो आपके एस्टिमेट से ज्यादा आए हैं तो वो पॉजिटिव रिस्क है. अगर आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपके एस्टिमेट से कम आए हैं, दैट इज अ नेगेटिव रिस्क. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिस्क, रिस्क इज डिफाइंड एज एन अनसर्टेन इवेंट और कंडीशन दैट इफ अकर्स, अगर ऐसा हो जाए, it will have both negative and positive effect on the project objectives. अब next क्या है? There are risk जो है it has multiple causes and it has multiple effects. Risk कई चीजों की वजह से हो सकता है. Risk can be due to many reasons. It can be due to government policies. It can be due to current situation में जैसे कोविड एक आ गया है. It can be due to suppliers issue. So risk can be due to any reason. और ये causes हैं इसके. और इफेक्ट क्या आ सकता है? इफेक्ट ये हो सकता है कि आपका जो सेल्स है, प्रोडक्शन सेल्स जो है वो कम हो गई है. When sale is less, your returns will also be less. तो ये इफेक्ट्स हो सकते हैं. जब ये कम हो सकता है तो हो सकता है आपको जो है कुछ एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़े. सो नाउ यू कैन सी दैट रिस्क कैन हैव मल्टीपल कॉजेज और सोर्सेस एंड इट कैन हैव मल्टीपल इफेक्ट. सो रिस्क में दो चीजें अभी तक हमने देखी. नंबर 1 कि रिस्क जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. एट द सेम टाइम रिस्क जो है उसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं और मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं. अब रिस्क की दो टाइप्स हैं फर्दर, नोन रिस्क एंड अननोन रिस्क. नोन रिस्क क्या है? अकॉर्डिंग टू PM book risk management process, risks that have been identified, analyzed and can be managed using processes is known as known risk. known risk क्या है? रिस्क की वो रिस्क, ये आपने कहा ना कि रिस्क की जो है मल्टीपल सोर्सेज हो सकते, मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं. ये जो मल्टीपल रिस्क की टाइप्स हैं, ठीक है, अगर एज अ मैनेजर आप इनको आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, आप उनको पहले से एनालाइज कर लो कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है. ये मेरे प्रोजेक्ट पे 5% इफेक्ट करेगा, ये 10% इफेक्ट करेगा, ये 60%, उसको टाइमली मैनेज भी कर लो. आप पहले से उसके लिए तैयार रहो. जैसे रिस्क हो शुरू हो कोई प्रोजेक्ट में, आप उसको पता हो, आपको पता हो कि ये रिस्क है, तो अगर ये आएगा तो अगर आपको ये पता है और आप इफ एज अ मैनेजर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मैनेज द रिस्क इन एडवांस, दैट इज नोन, दोज रिस्क्स आर नोन एज नोन रिस्क्स. इसी तरीके से इसका ऑपोजिट क्या है? अननोन रिस्क. Those risks which as a manager you cannot identify, analyze or manage, these are known as unknown risk in advance. हमेशा याद रखें. अब जो हम आगे चलेंगे कुछ बेसिक पैरामीटर्स आपने ज़हन में रखने हमेशा जब भी हम डिस्कशन करेंगे. नंबर 1 ये पैरामीटर्स हैं. रिस्क कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. नंबर 2 it can have multiple causes, multiple effects. Risk can be known risks or unknown risks. But remember, ये known होना और unknown होना दोनों in advance होता है. यानी आपको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो वो known risks हैं. और अगर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ रिस्क आपको नहीं पता थे तो those will be known as unknown risks. यहां तक क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. सो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट जो है दैट इज आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू प्रोजेक्ट रिस्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, इसको जरा गौर से देखिए। अगर मैं रिस्क तो आपने पढ़ लिया ना कि रिस्क होता क्या है, इवेंट है जो अकर हो जाए तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, वो रिस्क की डेफिनेशन है। फिर हमने कहा रिस्क जो है उसके मल्टीपल कॉजेज है, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, पॉइंट नंबर 2। फिर हमने पॉइंट नंबर 3 कहा कि वो नोन हो सकता है, अननोन हो सकता है, हो गया। अब हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट क्या है? इज टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड। एक्शन लेना, आइडेंटिफाई करना रिस्क को, एनालाइज करना और फिर उसका रिस्पॉन्ड देना, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अब आपने कहा कि नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एज अ मैनेजर आप नेगेटिव को कम करोगे और पॉजिटिव को और बढ़ाने की कोशिश करोगे। आज अगर 12% है तो अगली दफा आप 12% से ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आज लॉस हुआ है 5% का तो इसको आप कम करने की कोशिश करोगे। तो आज सेकंड स्टेप क्या है? यू मिनिमाइज नेगेटिव फैक्टर्स and you maximize positive factors. Minimize negative factors, maximize positive factors. तो रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपसे कोई पूछे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट जो है इट इज आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क। फिर आप कहेंगे इट इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग नेगेटिव रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग पॉजिटिव फैक्टर्स। नंबर 2, ये जो मिनिमाइज किया आपने, ये आपने किस चीज को किया है? लॉस को। और आप मैक्सिमाइज किसको करते हैं? प्रॉफिट को या गेन को? सो अब इसको हम समराइज करते हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग, analyzing and responding to a risk. It involves minimizing negative risks and maximizing positive risk. And you try to reduce your loss. अपने लॉस को आप कम करते हो और अपने प्रॉफिट को आप इंक्रीज करते हैं। इसको इंक्रीज करोगे और इसको डिक्रीज करोगे। ये क्लियर है जी स्लाइड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट PMI ये कहता है ऑर्गेनाइजेशंस दैट फेल टू प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मींस पहले से। दो चीजें होती हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। दो वर्ड्स होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है बिफोर एक्शन, यानी एक इवेंट के होने से पहले अगर आप कोई चीज कर लें, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। और एक इवेंट के होने के बाद उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप कुछ करें, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन या रिएक्टिव। तो यहां पे क्या वर्ड आया? यहां वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस दैट फेल्स टू प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मींस पहले से। अगर वो पहले से उसको प्रोएक्टिवली मैनेज ना करे, किसको? रिस्क को। अगर वो पहले से उसको प्रोएक्टिव मींस क्या? आइडेंटिफाई, एनालाइज, रिस्पॉन्स, IAR की बात कर रहे हैं हम। तो अगर वो पहले से रिस्क को मैनेज ना करे तो चांसेस बढ़ जाएंगे किसके? नेगेटिव इंपैक्ट्स के और प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस हैं।
बात समझ में लग गई जी? ऑर्गेनाइजेशंस जो फेल हो जाती हैं पहले से रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और रिएक्शन करने में, प्रोएक्टिव पहले से एक्शन करने में, देन देयर इज एन इंक्रीज इन चांसेस कि जो प्रोजेक्ट के नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रिस्क मैनेजमेंट में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। तो हमें कैसे प्रोएक्टिव करना है? 3 स्टेजेस कौन से हैं? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, एनालाइज, एनालाइज एंड और उसका रिस्पॉन्स बनाना है कि अगर ये रिस्क होगा तो क्या करना है, ये रिस्क होगा तो क्या करना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकोगे तो पीएमआई क्या कहता है? पीएमआई कहता है देन किस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे? नेगेटिव इम्पैक्ट के, नेगेटिव इंपैक्ट के, और प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? फेल। सर ये आइडेंटिफाई, एनालाइज, तीसरा पॉइंट। अब आ जाए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम रिस्क यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, रिस्क यूटिलिटी फंक्शन। इसमें 3 चीजें आपको डायग्राम नजर आ रही हैं। रिस्क की टाइप्स 3 मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूं। नॉर्मली जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्ट करती हैं या अपने रिस्क को देखती हैं, तो 3 किस्म के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। पहली है रिस्क अवर्सिव, रिस्क अवर्स, एक है रिस्क न्यूट्रल, एक है रिस्क सीकिंग। रिस्क अवर्स होता है, अवर्स का मतलब होता है भागना, भाग जाना, रिस्क से जान छुड़ाना, रिस्क ना लेना। ठीक है। रिस्क सीकिंग कौन होता है? जो रिस्क लेता है, रिस्क टेकर है। ये रिस्क अवर्स का मतलब है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग सी चीज है, समझें इस बात को। कहते हैं कि रिस्क और एक चीज होती है रिटर्न। दो चीजें होती हैं, रिस्क और रिटर्न। अच्छा, अगर आपने एक बड़ा फेमस जुमला सुना होगा, मोर रिस्क मीन्स मोर रिटर्न्स। अगर आप बैंक में, एक मैं 2 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, फाइनेंस के एग्जांपल दे रहा हूं। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप बैंक में पैसे रख दें, दूसरी पैसा लग, तो कहां पे रिस्क ज्यादा है? स्टॉक में। अच्छा, इसी वजह से जो स्टॉक में रिटर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और बैंक में जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं और कम होते हैं। तो इसका मतलब होगा कि रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न। जितना रिस्क आप ज्यादा लेंगे उतना रिटर्न क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। सो अगर आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिटर्न ज्यादा आएगा। सिमिलरली अगर रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न कम आएगा। कम आएगा। ठीक है, अब यहां पे वापस आ जाएं। ये वो बंदा है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्क अवॉइड करती है, रिस्क अवर्स है। तो ये यूटिलिटी है इसकी और ये पे ऑफ है, रिटर्न्स। पे ऑफ का मतलब रिटर्न्स। तो वक्त के साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बंदे को देख रहे हैं जो कि रिस्क नहीं ले रहा, तो वक्त के साथ साथ उसके रिटर्न्स क्या हो जाएंगे? कम होना कम शुरू हो हो जाएंगे। अगर एक पर्सन है जो कि रिस्क लेता है, सीकिंग है, तो उसकी यूटिलिटी का फंक्शन आप देखें वो वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। और अगर कोई न्यूट्रल है यानी ना रिस्क ले रहा है ना दरमियान में है, तो फिर उसकी जो कर्व है वो ये होती है स्ट्रेट, यानी वो ना रिस्क ले रहा है ना अवॉइड कर रहा है
ना वो रिस्क ले रहा है, ही इज नाइदर एन अवॉइडर नॉर अ रिस्क टेकर, ये रिस्क टेकर है, ये रिस्क को अवॉइड कर रहा है। सो हमारे पास रिस्क की यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी 3 टाइप हैं? रिस्क अवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क सीकिंग। सर रिस्क न्यूट्रल दोबारा रिपीट कीजिएगा। रिस्क न्यूट्रल वो है कि जो बैलेंस रखता है, यानी अगर मैं आपको इस तरह बताता हूं, अगर उसने 5, आपके पास 4 कंपनी के शेयर्स की ऑप्शन है, S1, S2, S3 एंड S4। 2 ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, 2 जो कि बहुत एवरेज रिटर्न दे रहे हैं। तो आपने क्या कर लिया, एक बैलेंस मेंटेन कर लिया है, ना वो रिस्क को अवॉइड बहुत ज्यादा ले रहा है, दरमियान में है, बैलेंस रखता है, तो उसकी जो कर्व होगी वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी। सो रिस्क न्यूट्रल इज अ पर्सन who creates a balance between risk taking and risk avoidance। बैलेंस रखता है, कुछ ऐसे शेयर्स लेगा जो कि रिस्कियर हैं, कुछ ऐसे लेगा जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, तो ओवरऑल जो रिस्क है वो न्यूट्रल आ जाएगा। कुछ और डेफिनेशंस, पहले है रिस्क एपिटाइट, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क थ्रेशोल्ड। ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में काफी यूज होती हैं, और इसकी वजह से ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। रिस्क एपिटाइट, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। रिस्क एपिटाइट, एपिटाइट होती है भूख, ख्वाहिश, ठीक। एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपिटाइट क्या है? मींस द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क an organization is willing to accept in light of the anticipated reward। यानी वो क्या है, यहां पे वही आगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिटर्न्स, रिस्क और यूटिलिटी नजर आ रही है, तो वो 3 में से कौन सी सिचुएशन पे जाना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरीज हो सकती हैं, वो रिस्क अवर्सिव हो सकती है, वो रिस्क न्यूट्रल हो सकती है, या वो रिस्क सीकिंग हो सकती है, एस। तो हमने अभी ये देखा 3 किस्म की टाइप्स देखी, रिस्क अवर्सिव, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क सीकिंग। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की एपिटाइट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या रिस्क टेकर है, या वो रिस्क अवॉइडर है, या वो रिस्क न्यूट्रल है। यानी रिटर्न्स को और रिस्क को सामने रख के वो अपने आप को कहां प्ले। ऑलराइट जी, सो हमारे पास कौन कौन सी टीम सीकिंग का मतलब होता है कि जी, किसका सबसे मतलब? ज्यादा रिस्क ले रहा है, सीकिंग मतलब ज्यादा रिस्क ले रहा है, जो रिस्क ज्यादा ले रहा है, लिहाजा उसको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक हो गया सर। रिस्क अवर्सिव वो है जो कि रिस्क कम ले रहा है, लिहाजा रिटर्न्स भी कम है। और रिस्क न्यूट्रल वो है जो कि बैलेंस चल रहा है, लिहाजा उसके रिस्क और रिटर्न्स बैलेंस हो रहे हैं। सो सबसे पहला है रिस्क एपिटाइट। व्हाट इज द अनसेट लेवल ऑफ रिस्क अ फर्म इज विलिंग टू एक्सेप्ट। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक अपने आप को प्लान करती है रिस्क के हिसाब से, वो रिस्क अवर्सिव है बनना चाहती है, वो रिस्क न्यूट्रल बनना चाहती है, या वो रिस्क सीकिंग बनना चाहती है। तो दैट इज कॉल्ड रिस्क एपिटाइट। सेकंड कॉन्सेप्ट है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस क्या है कि वो कहती है ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन कहता है ठीक है जी, आई वांट टू टेक रिस्क, मैं अपने आप को रिस्क सीकर बनाना चाहता हूं, मैं प्लेस करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इटसेल्फ जो है वो रिस्क जो है वो लेती है। तो अब हमने ये देखना है कि किस हद तक, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसके मुतालिक वो कहता है कि जी हम जो है 3 से 5% अगर रिस्क होगा इन्वेस्टमेंट में, तो ये हमारी टॉलरेंस की लिमिट है। यानी हम जो है वो 3 से 5% अगर हमारा रिस्क प्लस माइनस हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे एक डाइट किया था, हमने कहा कि जी एवरेज है 10% और ज्यादा से ज्यादा 15% जा सकता है, और मिनिमम जो है वो 5 तक जा सकता है। तो हमने कहा कि हमारी जो रेंज है वो क्या है, +-5।
तो हम जो है 5% तक जो है इसमें रिस्क ले सकते हैं। तो 5% जो है वो हमारी रिस्क की लिमिट है। तो टॉलरेंस क्या है? रिस्क टॉलरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू विथस्टैंड बिफोर चूजिंग एन अल्टरनेटिव। यानी आप कहते हैं जी मैं इस वक्त रिस्क ले रहा हूं, मैं रिस्क सीखूं, लेकिन मैं 5% तक का रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूं। यानी अगर मैं 10% सोचा था तो मैं 15 मैक्सिमम और 5 मिनिमम, इसकी रेंज में मैं रहूंगा। ये मेरी टॉलरेंस लिमिट है। इससे आगे पीछे मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरी टॉलरेंस की लिमिट क्या है? 5 से लेके 15%, 10% मेरी एवरेज है। तो +5 हो या -5 हो, 5% ये मेरी टॉलरेंस की लिमिट है। ये कहलाता है रिस्क टॉलरेंस। एंड फाइनली हमारे पास आ गया रिस्क थ्रेशोल्ड। रिस्क थ्रेशोल्ड अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मिनिमम तो 5 था, एवरेज 10% था और 15% मैक्सिमम था, तो मेरी थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या है? यानी किससे मैं नीचे नहीं जा सकता, किससे ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, तो 5% मेरी लोअर लिमिट है और 15% मेरी अपर लिमिट है। ये मेरा रिस्क थ्रेशोल्ड कहलाएगा। ये थ्रेशोल्ड की वैल्यूज हैं। इससे ना मैं नीचे जाऊंगा, ना मैंने इससे ऊपर जाना है। तो मैं अब समराइज करता हूं तीनों को। रिस्क एपिटाइट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कैसे प्लान कर रही है, आइदर एज रिस्क एवर्सिव, एज रिस्क न्यूट्रल और एज रिस्क सीकर। जब हमने ये प्लान कर लिया, देन वी नीड टू सी कि हमारी टॉलरेंस की लिमिट्स क्या है, हम कहां से कहां तक रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने कहा कि हमारी जो लिमिट है टॉलरेंस की वो ±5% है। फिर तीसरा सवाल आ जाता है कि इसमें थ्रेशोल्ड क्या है, कितने % से हम नीचे नहीं जाएंगे और कितने % से ऊपर नहीं जाएंगे, ये हमारा थ्रेशोल्ड कहलाएगा। सो 5% एंड 15% आर अवर थ्रेशोल्ड लिमिट। यही मैंने यहां पे दे दिया। रिस्क एपिटाइट क्या है कि हमने ये देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में है, एवर्सिव, न्यूट्रल या सीकर। और फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉलरेंस है वो कहां तक है। हमने कहा जी हम कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं बिटवीन 3 to 5%, ये हमारी टॉलरेंस की लिमिट है। और थ्रेशोल्ड क्या है? इसमें अगर कॉस्ट है तो हम किससे ऊपर नहीं जाने देंगे। मोबाइल तो हमारी थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या है इसमें? 5% हमने इसमें रख दी। और दूसरी लिमिट क्या है हमारी? कॉस्ट में तो जाहिर बात है हम ऊपर की लिमिट देखेंगे और रिटर्न्स में हम कोशिश करेंगे नीचे वाली लिमिट को देखें। तो अगर ये हमारी कॉस्ट है तो हम किससे नीचे नहीं जाएंगे, ज्यादा नहीं जाना चाहते 5% से। इससे ज्यादा खर्चे नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। ये हमारी थ्रेशोल्ड की लिमिट है। ये क्लियर हो गया सबको? जी सर। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है टॉलरेंस में और थ्रेशोल्ड में। हाँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए रिस्क टॉलरेंस क्या है? रिस्क टॉलरेंस जो है वो लिमिट है, ठीक है। ये एक लिमिट है 3 to 5%। आपने कहा कि जी 3 से 5% के दरमियान मैं कॉस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा अगर बढ़े। इसमें से अगर कॉस्ट की बात करूंगा, आप ध्यान में रखें कॉस्ट को, तो कॉस्ट में आप नीचे तो जाना पसंद करेंगे, ऊपर जाना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है। तो उस केस में तो 5% आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई। अगर ये होते रिटर्न्स तो आप ऊपर जाना तो फिर भी पसंद करेंगे, नीचे जाना नहीं पसंद करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो रिस्क थ्रेशोल्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन 3% और इन केस ऑफ कॉस्ट इज 5%। लिमिट और रेंज क्या है? वो टॉलरेंस लिमिट कहलाती है। टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस वो है 3 से 5%। 5%। ठीक। उसके बाद हमारे पास 2-3 डेफिनेशंस और रहती हैं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। मैं अब यहाँ पे इसको अटेंडेंस आपकी ले लूं और फिर हम इसको आज एंड करते हैं। इसमें मैं अटेंडेंस ले लूं।